Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening. I'm Khatija Zishan, your host today's session. On behalf of the AMP team, I welcome you all to the Career Guidance Seminar. Before we start the talk, let's have a brief intro of what AMP is all about. AMP is a non-profit organization started in the year 2007, registered in India, USA, UK, and Australia. It has been serving our country in the field of education, employment, and empowerment, and it has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030, inshallah. AMP's mission is to serve the underprivileged to benefit the society and nation as a whole. AMP's vision to be a model community which is advanced in education, socially progressing, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. Some of the prominent achievements of AMP under the school development program: 2,800 plus skill development lectures were delivered, connected with 800 plus schools, 281,000 students were benefited, and 110 plus teachers training and parenting workshops were conducted. Employment Assistance Cell organized 360 plus job fairs and job drives, which helped in the employment of 21,000 plus candidates. 220 plus employability trainings were conducted and 17,000 plus degree students were benefited. Scholarships and self-employment: 800 plus higher education scholarships were sponsored, 860 plus towards orphans education, 425 plus families were benefited. AMP's Resource Center has 660 plus career counselors and 2,500 plus students have been counseled. 50 plus career guidance documents and 1,500 plus career chart distribution can be found. Awards and partnerships: 380 plus renowned educationalists connected and awarded, 50 plus partnerships including state governments and 100 plus partner NGOs. AMP has added another feather to its cap by launching new digital initiatives, which include indiazakat.com, indiamentors.com, and ampowerjobs.com. Indiazakat.com is India's first zakat crowdfunding platform where zakatsers and zakat givers are unified. Its objective is to serve the needy. IndiaMentors.com is a mentorship portal for students from different backgrounds to be mentored by esteemed members of the community. EmpowerJobs.com is a free portal to help job seekers connect with the employers. It also offers skill training and employability training programs. AMP's reach: it has an on-ground presence of more than 140 active chapters in 26 states in 16 countries with 6,000 plus active members. It also has an online presence of 1,500,000 members and professionals connected on various social media platforms. To join AMP, visit www.ampindia.org/joinamp. You can also connect with us on social media platforms. We also have a YouTube channel where you can catch up with the upcoming videos. So if you have any questions regarding today's sessions, please drop it in the Q&A section. We will get back to you at the end of the talk. So join us today as our esteemed speaker is Mr. Jawad Qazi. He is a center head and a senior faculty at the Unique Academy, Pune. He publishes a crisp monthly current affairs pamphlet in addition to lecturing. He also assists development of questions for the prelims and exam, as well as the evaluation of mains days. He has also served on mock interview panels for UPSC and other exams. He is also founder and president of Talk Club, a socio-cultural organization which aims to provide a platform for the students to hone their skills and innate talents. We are extremely honored to have you here with us, sir. A very hearty welcome on behalf of our AMP team.
Thank you, sir. Over to you. Dignitaries in the audience, members of the very vibrant Association for Muslim Professionals, NGO, and all my dear students who have joined today in this program to learn more about career in civil services. I welcome you all to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before I actually start my talk, very briefly I would share that when AMP was started way back in late 2000s, since then I had the privilege of being on and off associated with this wonderful NGO. And since then I was lucky to contribute in my own small way regarding career guidance for civil services. And it feels so happy when I was seeing the video of Association for Muslim Professionals, how well this organization has flourished over the last decade. And I was reminiscing all my interactions with Amir Idrisi sir and other office bearers of AMP. I would congratulate Amir Idrisi sahab in absentia and his entire team for the wonderful work that they're doing for upliftment of the community and the country. On that note, I will here share my PowerPoint presentation and also share my thoughts regarding civil services exam, how you could clear this exam, and what are the opportunities that are available for you as a civil services aspirant. Allow me to share my screen with you guys here. Guys, when we talk about the civil services, there are a lot of myths that come to our mind. I'm sure almost all of you have heard about the posts of IAS, IPS, Indian Revenue Services, Indian Railway Traffic Services, so on and so forth. But more often than not, we are informed, with a lot of prejudices, myths, and incorrect ideas about the exam that recruits you to these prestigious jobs, and also about the nature of these jobs per se. And therefore, it really is very thoughtful of AMP to have organized this webinar so that many of these misconceptions, these myths that a lot of young aspirants have, they could be cleared. I've been told that for a larger benefit of the audience, the talk must be in Hindi Urdu so that सभी लोग इससे फायदा उठा सकें. इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉक को ज्यादा हिंदी उर्दू और थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल रखूं ताकि वाइडर ऑडियंस तक इसको जो है हम पहुंचा सकें. दोस्तों, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, इससे आप सब वाकिफ हैं. और इसलिए बहुत मुख्तसर तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जरूरी है कि हमारा यूथ उन करियर्स की तरफ माइल हो, उन करियर्स की तरफ अट्रैक्टेड हो जहां पर आइदर वो स्टेट की मशीनरी का पार्ट है या फिर वो ऐसे करियर्स को ज्वाइन करे जहां पर वो स्टेट की मशीनरी को अकाउंटेबल बना सके. मैं फिर से दोहराता हूं, ऐसे करियर्स की तरफ अट्रैक्ट होना जरूरी है हमारे यूथ के लिए जहां पर में वो स्टेट की मशीनरी का हिस्सा है, उसके पार्ट है, या फिर ऐसे करियर्स जहां पर में वो स्टेट की मशीनरी को अकाउंटेबल बना सके. पहला जो हिस्सा है स्टेट की मशीनरी का पार्ट होना, उसके लिए सिविल सर्विसेज से अच्छा और रास्ता नहीं हो सकता है. और इसीलिए आज का ये टॉक जो है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी के लिए ये एनलाइटनिंग होगा और आपको ये फायदा देगा. और दूसरे टाइप के जो करियर्स हैं जो अकाउंटेबल बना सकते हैं स्टेट की मशीनरी को, मैं समझता हूं उसमें लॉ और मीडिया ये प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जहां पर मैं करियर्स के बारे में आपको सोचना चाहिए. तो आज का हमारा टॉक बहरहाल ये सिविल सर्विसेज के मुतालिक रहेगा. जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत दफा आपके जहन में ये थॉट आता होगा कि ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होती है. सक्सेस रेशियो जो है, इसके बारे में बड़ी व्हाट्सएप के ऊपर में आपने फॉरवर्ड्स पढ़े होंगे. मैं आपको इन सब चीजों के बारे में एक बड़ी आसान सी और सिंपल सी चीज यहां बताना चाहता हूं. दोस्तों, याद रखिए कि आपकी जिंदगी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है आपके लाइफ का मकसद, जिसको हम कहते हैं पर्पस. इसके लिए अरबिक जबान में, अरबिक लैंग्वेज में एक बड़ा ही अच्छा वर्ड यूज होता है, नस्बुल ऐन. ठीक है, नस्बुल ऐन यानी दैट थिंग दैट इज देयर बिफोर योर आईज. आपकी ऐन यानी आपकी नजरों के सामने जो चीज हर वक्त रहती है, आपका टारगेट, आपका हदफ. अगर आपकी जिंदगी का पर्पस अगर वसी है, बड़ा है, तो उस केस के अंदर में आपके सामने आने वाली चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटे हो जाते हैं. और अगर आपके सामने जिंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं है,
तो फिर बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस भी आपको मायूस करते हैं। इसलिए मैं आपके लिए सबसे पहले ही चीज जो इस टॉक के जरिए से आपको कन्वे करना चाहता हूं वो ये है कि आप आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो बड़ा रखें। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे दैट लो एम इज अ क्राइम, लो एम इज अ क्राइम। आपके सामने एएमपी और आमिर इदरीसी साहब की मिसाल है। एक छोटे से शुरुआत से एएमपी की शुरुआत हुई थी 2007 से, और वहां से लेकर के आज मल्टीनेशनल आप ये कह सकते हैं कि तौर पे ये एनजीओ आज काम कर रही है, कई लाखों लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा है। ओके, सो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। सो आपको एक बड़ा पर्पस रखना है, भले से आज वो आपको बहुत इंपॉसिबल लगे, लेकिन जब आप उसके डायरेक्शन में, आप उसके दिशा में जब आप चलना शुरू करने लगते हैं तो फिर वो पर्पस जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है। So first thing is that you must have a very, very clear purpose regarding what you want to achieve in your life. और अगर आपकी जिंदगी का पर्पस ये है कि आप आपके टैलेंट्स, आपके पोटेंशियल, आपकी इनेट एबिलिटीज को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए आप कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं सिविल सर्विसेज से अच्छा करियर और दूसरा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा करियर है जो आपके हिडन पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करने का आपको पूरा मौका देगा, और इसके जरिए से आप हमारे कंट्री के लिए, हमारे बिरादराने मिल्लत के लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसीलिए सिविल सर्विसेज के ऊपर में आपकी खास तवज्जो होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, बहुत ही शुरुआती वक्त में ही इस टॉक में मैं आपके सामने कुछ मिथ्स बस्ट करना चाहता हूं, ताकि आपके जहन में जो ये डाउट्स हैं, सेल्फ आप ये कह सकते हैं कि मेंटल ब्लॉक्स हैं, इनको हम निकाल सके पहले ही। ठीक है, इस एग्जाम या इन करियर्स के रिलेटेड जो प्रोमिनेंट मिथ्स हैं, मैं उनको आपके सामने यहां पर मैं रखना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज है एकेडमिक बैकग्राउंड। अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फील दैट ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन मेरिटोरियस थ्रू आउट, जो हमेशा से अव्वल नंबर से पास होते आए हैं, जो 10th 12th में रैंकर्स रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वो ही इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले आपके जहन से इस चीज को निकाल देना चाहता हूं। दोस्तों, इस एग्जाम का और आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड का एज सच कोई लेना देना नहीं है। दीज आर टू कंप्लीटली वेरी डिफरेंट थिंग्स। सो इफ यू हैव नॉट हैड अ वेरी इंप्रेसिव एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड एज सच, प्लीज डोंट वरी। यूपीएससी आपको आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पर जज नहीं करती। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए आपको कोई एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ऐसे ऑफिसर्स को पर्सनली जानता हूं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी ऑर्डिनरी या मीडियोकर रहा है, लेकिन इस एग्जाम में वो टॉपर रहे और आईएएस, आईपीएस जैसी प्रोमिनेंट सर्विसेज में आज बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और साथ ही बहुत ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन इस एग्जाम में सक्सेस एल्यूडेड देम, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, यूपीएससी ने जानबूझकर इस एग्जाम में कोई भी एकेडमिक क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेजुएट नहीं रखा है। ठीक है, तो आप आपके जहन से इस चीज को सबसे पहले निकाल दीजिए कि आपको बहुत मेरिटोरियस एकेडमिक बैकग्राउंड इस एग्जाम के लिए चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, only convent educated or those candidates who have done their education from English medium, only they can clear this exam. ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में देश की जो इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन सभी को रिकॉग्निशन दे रखा है। ठीक है, और इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में यूपीएससी का इम्तिहान होता है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, आप इंटरव्यू भी उन लैंग्वेजेस के अंदर में आप अपीयर कर सकते हैं। सो आप इंग्लिश में कितने प्रोफिशिएंट हैं, ये इस एग्जाम में सक्सेस के लिए बेंचमार्क नहीं है। सो इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद इंग्लिश पर से, डोंट बी बॉदर्ड अबाउट दिस। आप बिल्कुल इस एग्जाम को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के अंदर में अपीयर कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। खास तौर पे मैं थोड़ा ज्यूम कर रहा हूं शायद, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि उर्दू मीडियम से जिन्होंने अपनी तालीम हासिल की है। तो खास तौर पे उर्दू मीडियम से जो पढ़े हैं उनके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उर्दू में इस मेंस एग्जामिनेशन को यूपीएससी की आप लिख भी सकते हैं, इंटरव्यू भी आप उर्दू में दे सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उर्दू जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मेन एग्जामिनेशन में आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि 500 मार्क्स के लिए आपको वहां पर में ऑप्ट करना होता है।
सो उर्दू लिटरेचर लेकर के भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वर्नाक्युलर मीडियम, पर्टिकुलरली उर्दू, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. ये दूसरा मिथ मैं आपके जहन से निकालना चाह रहा था. द थर्ड इज फैमिली बैकग्राउंड. बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेरे पास में आते हैं काउंसलिंग के लिए, वो ये कहते हैं कि सर मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, किसी रिमोट डिस्ट्रिक्ट से, इंटीरियर से ताल्लुक रखता हूं, तो क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकूंगा? तो यहां पर मैं भी बहुत वाज़ेह तौर पे और बहुत साफ तौर पे मैं ये चीज को कहना चाहता हूं कि यूपीएससी की एग्जाम के अंदर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एज सच आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है. बहुत सारी मिसालें हैं दोस्तों. सबसे अच्छी मिसाल आप सब जानते ही होंगे, अंसार शेख. इनके बारे में, अंसार शेख 22 साल की उम्र में ये लड़का पहले अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर में टॉप कर गया. आज वो कलेक्टर है वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर में एट द एज ऑफ 22. Guys, it is a foregone conclusion that Ansar Sheikh is going to reach the rank of Chief Secretary or maybe even Cabinet Secretary of India. हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो कहलाती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. क्योंकि अंसार 22 साल की उम्र में सिलेक्ट हुए थे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो बिल्कुल उस रैंक तक, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रैंक तक पहुंच सके. और इनका बैकग्राउंड क्या है आप जानते हैं. जालना जैसे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं. जिला परिषद की स्कूल में मराठी मीडियम में तालीम हासिल की है. फाइनेंशियली जो है बहुत सारे चैलेंजेस में से उनकी फैमिली गुजर रही थी, और उसमें से आकर के फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम में टॉप किया, आईएएस बने हैं, और अब वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से देश को सर्व कर रहे हैं. सो एज सच आपका फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है. आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन, ये सारी चीजें मैटर करती है. ठीक है. इसके बाद एक बड़ा मिथ है कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए या और ऐसे दीगर एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हर रोज 17-18 घंटे काम या पढ़ाई आपको करनी होती है. दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इन एग्जाम से दूर रखता है. इन एग्जाम्स के अंदर में क्वालिटी मैटर करती है ओवर क्वांटिटी एनी गिवन डे. अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी से मेहनत करते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इन एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं. मैं अपने खुद के तजुर्बे से कह रहा हूं, मैंने खुद बहुत सारी इनमें से एग्जाम्स को क्लियर किया है. मैं खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर रहा हूं. मैं श्योरिटी के साथ में आपको कह सकता हूं कि 17-18 आवर्स पढ़ाई करना, जो भी आप इंटरनेट पर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें मिथ्स हैं. आपको क्वालिटी मैटर करती है रादर देन क्वांटिटी. ठीक है. और नंबर ऑफ आवर्स, इनके टर्म्स में आप मत सोचिए. अगर आप कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर डेडिकेटेडली 9 to 10 आवर्स क्वालिटी स्टडी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को टॉप कर सकते हैं. ठीक है. सो रिमूव दिस मिथ फ्रॉम योर माइंड दैट दीज एग्जाम्स रिक्वायर दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि 17-18 आवर्स ये इंपॉसिबल है. अगर आप 8 दिन में 17-18 आवर्स पढ़ाई करते हैं लगातार, तो 9वें दिन मेरा चैलेंज है, आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ ही नहीं पाएंगे. ठीक है. सो रिमूव दिस मिथ फ्रॉम योर माइंड. एंड लास्टली, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. अगेन, जैसा मैंने बताया कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये इस एग्जाम के लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है. आप बिल्कुल अपने वर्नाक्युलर मीडियम्स में से भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं. तो बहुत शुरुआत में मैं ये मिथ्स आपके सामने जो है वो रखना चाह रहा था, ताकि आपके जहन में अगर एट द बैक ऑफ द माइंड ये चल रही है तो हम इनको पहले हटा दें, ताकि हमारी स्लेट पूरी क्लीन हो जाए और फिर इसके आगे हम बाकी की गुफ्तगू कर सकें. खासतौर पर थोड़ा सा यहां पर लिबर्टी लेकर के मैं ये चीज शेयर करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम यूथ्स के अंदर में ये एक मेंटल ब्लॉक सा बन गया है. ठीक है. क्या मेंटल ब्लॉक है? कि हमारे साथ में जो है वो तासुब होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और हमको मौके नहीं मिलते हैं. ये बस हमारी डिफीटिस्ट मेंटालिटी की सोच ये चीज कहती है. ठीक है. उर्दू में कहते हैं शिकस्त खुर्दा जहनियत, डिफीटिस्ट मेंटालिटी. हमने पहली हार तस्लीम कर ली है. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों. पिछले कुछ सालों के अंदर में जहां से मुस्लिम यूथ में अवेयरनेस बढ़ा है, वहां से मैं ये देख रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा आ रहे हैं और सिलेक्शन का प्रोपोर्शन भी जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी रीसेंट ईयर्स. तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि एज सच कोई भी यहां पर में डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं होता इन तमाम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. मैं पूरी एश्योरिटी के साथ में आपको ये चीज कहना चाहता हूं. मैंने खुद एसबीआई की पीओ एग्जाम टॉप की है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम मैंने टॉप की है. किसी भी स्टेज के ऊपर में कहीं पर भी किसी किस्म का भी डिस्क्रिमिनेशन या करप्शन मैंने नहीं देखा, ना ही मेरे और स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इन एग्जाम्स को क्लियर किया है. ठीक है. इनफैक्ट जस्ट एक मिसाल के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं, जैनब सईद वेस्ट बंगाल की एक बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की ने यूपीएससी एग्जाम में कुछ सालों पहले टॉप किया था, अराउंड 4 years ago.
और उसको इंटरव्यू में हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ज़ैनब सईद का इंटरव्यू का जो स्कोर है उसका रिकॉर्ड अब तक ब्रेक नहीं हो पाया है। लास्ट 4 to 5 इयर्स में उतना किसी ने भी स्कोर नहीं किया है। सो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता तो ज़ैनब सईद को इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर्स आ सकते थे? ऑफ कोर्स नॉट। सो रिमूव दिस फ्रॉम योर माइंड। ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी से, ये शिकस्त खुर्दा जहनियत से हमको बाहर निकलना है। अपने डिंट ऑफ आवर मेरिट, अपने टैलेंट, अपनी मेरिट, अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत और कोशिश के जरिए से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआती तौर पर मैंने ये कुछ बेसिक मिथ्स आपके सामने रखे। अब मैं थोड़ा सा तफसील से आपको सिविल सर्विसेज क्या है इसको एट द बेसिक लेवल पहले मैं समझाकर आगे बात बढ़ाता हूं। दोस्तों, हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे इंडियन पॉलिटी, इसके 3 इंपॉर्टेंट विंग्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव यानी हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर इज आवर पार्लियामेंट, जहां पर में हम कायदे कानून जो है वो बनाते हैं, पास करते हैं। और तीसरा है जुडिशियरी, जहां पर में हम इंसाफ की दाद जो है वो रखते हैं। एग्जीक्यूटिव के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकारें आती हैं इलेक्शन के जरिए से और वो अमूमन 5 साल तक रहती हैं और वो एक पॉलिसी, एक अपने आइडियोलॉजी और अपने गोल्स के हिसाब से लॉज और पॉलिसीज को फ्रेम करती हैं। तो ये है हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम हमारी डेमोक्रेसी में 5 साल के लिए काम करता है और उसके बाद में वो इलेक्शंस के लिए नेक्स्ट इलेक्शंस के जरिए से अगला एग्जीक्यूटिव इलेक्ट होता है। ठीक है, तो हर 5 साल में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बदलता है। मुझे यहां पर मरहूम राहत इंदौरी साहब का वो जो मशहूर मिसरा है वो याद आता है, जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका जो एसेंस है वो जमहूरियत का एसेंस है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो आज है, वो कल नहीं होगी। 5 साल के बाद में उसने फिर से इलेक्शन फेस करना है, लोगों के सामने जाना है और लोगों को काम पसंद आया तो ही इट कैन बी वोटेड बैक टू पावर। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव का एक दूसरा हिस्सा ऐसा है जो कि जब अपॉइंट होता है वहां से लेकर रिटायरमेंट के एज तक वो काम करता है। उसका जो मेंबर है वो पूरी सर्विस अपनी वहां पर में सर्व करता है। इसे हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स या ब्यूरोक्रेट्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो लॉज और पॉलिसीज बनाती है उनको एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करने का काम ये हमारी सिविल सर्विसेज करती है। ठीक है, इसीलिए इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी हम कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कम एंड गो बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज देयर टू स्टे। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों सिविल सर्विसेज। ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर ने इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। ठीक है, भारत की जो सिविल सर्विसेज हैं उसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था और मैं समझता हूं कि ये उसका जो वस्फ है, ये जो उसका एडजेक्टिव है, ये आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। हमारे देश का जो पूरा सिस्टम, पूरा निजाम चल रहा है वो जिस स्ट्रक्चर पे खड़ा है वो है सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज चूंकि देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए ये जरूरी समझा गया कि हमारे देश के बेस्ट माइंड्स इसमें सिलेक्ट हो। ठीक है, मेरे वर्ड्स को नोटिस कीजिए, मैं कह रहा हूं द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री, मैं बेस्ट ब्रेन्स नहीं कह रहा हूं। ठीक है, देयर इज अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ वर्ड्स ओवर देयर। सो बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री आर सिलेक्टेड एवरी ईयर बेस्ड ऑन मेरिट। हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए से हमारे देश के सिविल सर्वेंट्स ये सिलेक्ट होते हैं और इन पोस्ट के ऊपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है वो अपने फराइज अंजाम देते हैं। यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे और हर स्टेट की अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट सर्विसेज स्टेट के लेवल पर इस एरिया के अंदर में काम करती है रिक्रूटमेंट के लिए। सो यूपीएससी सेंट्रल ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है और रिस्पेक्टिव स्टेट्स में स्टेट सर्विस कमीशंस इसका रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हमारे यहां है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश के अंदर में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरीके से हर स्टेट की ये रिक्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, अब हम दोस्तों थोड़ा सा यूपीएससी क्या है इसको समझते हैं। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में इसको जगह दी गई है बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कंट्री। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि यूपीएससी
is the watchdog of merit in India. हमारे देश के अंदर में जो टॉप नॉच ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं, उनका चयन, उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन सिर्फ मेरिट के आधार पर हो, यह बड़ी अहम जिम्मेदारी यूपीएससी को सौंपी गई है। और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब ने इसको वॉचडॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया ये कहा था। इस बॉडी को सफिशिएंट पावर हो, प्रोटेक्शन मिले, इसलिए इसको आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही जगह दी गई है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ द डे या कोई भी और एक्सटर्नल प्रेशर इस पर एक्ट ना करें। इसमें इतनी ताकत हो कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम रिक्रूटमेंट का ये कर सके। और इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि जब यूपीएससी के एग्जाम के रिजल्ट्स आउट होते हैं तो हम अक्सर न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर पढ़ते हैं कि कोई कंडक्टर जो है वो यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में टॉप कर गया। हाल में आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल, उन्होंने यूपीएससी एग्जाम टॉप की थी, और जिस सर्विस में वो कांस्टेबल थे, पुलिस सर्विस में, अब वो वहां पर में एज एसीपी अपॉइंट होने जा रहे हैं। सो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि यूपीएससी जैसी ट्रांसपेरेंट और फेयर बॉडी ये रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, भारत सरकार के गैजेटेड ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट का काम यूपीएससी को दिया गया है। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ए, बी, सी, डी, ऐसा वर्टिकल क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट के सर्विस में होता है। तो इसमें जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, हु आर पार्ट ऑफ ग्रुप ए एंड बी, इनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी के जिम्मे होता है। इस रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी हर साल मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स कंडक्ट करती है। प्रोमिनेंटली इसमें सिविल सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और भी बहुत सारे दीगर इम्तिहान यूपीएससी कंडक्ट करती है। इन सभी इम्तिहानों में ऑब्वियसली सबसे फेमस, सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे ज्यादा फॉलोड जो एग्जाम है वो आप ये कह सकते हैं कि ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बेसिक उसके कुछ बातें यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। नो डाउट गाइस, सिविल सर्विसेज is the most prestigious of all these exams. And why do I say so? Guys, I say so because civil services ये वो पोर्टल है, ये वो रास्ता है जिसके जरिए से आप गवर्नमेंट की प्रीमियर सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सरकार की जो प्रीमियर 23 सर्विसेज हैं, उन सबके अपॉइंटमेंट का एकमात्र जो रास्ता है, जरिया है, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इसीलिए भारत में ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा वाली, प्रेस्टीज वाली एग्जाम मानी जाती है। ठीक है, अब कौन सी सर्विसेज का अपॉइंटमेंट इस एक सिंगल एग्जाम के जरिए से होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि 23 अलग अलग मुख्तलिफ सर्विसेज का अपॉइंटमेंट इस एक एग्जाम के जरिए से होता है। प्रोमिनेंटली इसमें जो कुछ सर्विसेज के बारे में आपने सुना भी होगा, वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं दोस्तों? भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम एसडीएम लेवल, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। यानी सिंपल और आसान अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं तो 7 से 8 तालुका के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस होते हैं, ही इज कॉल्ड एज एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, एसडीएम किससे के रैंक से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रैंक तक जितने भी जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट हैं, वहां पर में आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि ये कार्डर है या पूल है ऑफिसर्स का, जिनको जहां पर जरूरत होंगी एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप नॉच पोजीशंस पर, वहां पर में ये आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, देश का प्रशासन, देश का सिस्टम, देश का गवर्नेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्ट्स का इंप्लीमेंटेशन, ये सारा काम, जिम्मेदारी जो है वो आईएएस ऑफिसर्स की होती है। ठीक है, आईएएस के बाद में सबसे नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर, फेमस, प्रेस्टिजियस जो सर्विस है वो है इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। देश के अंदर में जो सिक्योरिटी का निजाम है, ये इंडियन पुलिस सर्विस के हाथ में होता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेकर के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक तक जो टॉप नॉच पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, वो सभी इस पूल या इस कार्डर से बिलोंग करते हैं, आईपीएस। ठीक है, राइट फ्रॉम असिस्टेंट एसपी लेवल टू डीजीपी लेवल, ऑल ऑफिसर्स बिलोंग टू आईपीएस कार्डर। इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस,
देश को बाहर दूसरे देशों में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज के अंदर में, वेरियस डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग्स में रिप्रेजेंट करने का काम इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स करते हैं। हर मुल्क में तकरीबन हमारा कुछ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होता है, हमारी एम्बेसीज होती हैं, कहीं पर कॉन्सुलेट्स होते हैं, वो सारा एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स का काम हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों बॉर्डर पर सैनिक देश की फिजिकल सिक्योरिटी की रक्षा करता है कि कोई दुश्मन जो है वो हमारे देश में ना घुस आए, उसी तरीके से हमारे देश के जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको सिक्योर करने का काम इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स करते हैं। और ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा एजाज है जो किसी भी हमारे यूथ को मिल सकता है कि आप पूरा करियर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम में, और उस तरीके से आपको ग्रूम और ट्रेन भी किया जाता है, उस तरीके का एक्सपोजर भी आपको इस सर्विस के अंदर में मिलता है। फॉरेन सर्विस के बाद में और बहुत सारी दीगर सर्विसेज हैं, जिनमें रेलवेज की काफी सारी सर्विसेज हैं, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, ऐसी रेलवेज की सर्विसेज हैं, ऑडिट एंड अकाउंट की सर्विसेज हैं, डिफेंस के रिलेटेड सर्विसेज हैं। ऐसे मुख्तलिफ सर्विसेज को मिला करके तकरीबन 23 ये गवर्नमेंट सर्विसेज का रिक्रूटमेंट सिर्फ इस एक एग्जाम से हो सकता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक एग्जाम क्लियर करने से 23 रास्ते आपके सामने ओपन अप हो जाते हैं प्रीमियर गवर्नमेंट सर्विसेज के, तो ये कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा एजाज है किसी भी यूथ के लिए। ठीक है, ये सारे जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है ये हर साल एक फिक्स्ड पैटर्न के अंदर में कराई जाती है, यानी एनुअल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। इसका कैलेंडर बहुत पहले डिक्लेयर हो चुका होता है, यानी मान लीजिए कि अगले साल 2022 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसका कैलेंडर ऑलरेडी अक्टूबर 2021 में अनाउंस हो चुका होता है। ये जरूरी है इसलिए दोस्तों क्योंकि आपकी एज में टाइम इज एट अ प्रीमियम, आपको आपका करियर प्लान करना बहुत जरूरी है, और करियर प्लानिंग के तौर पर ये नेसेसरी है कि एग्जाम रेगुलर तौर पे लिए जाए। यूपीएससी विदाउट एनी ब्रेक रेगुलरली पिछले कई दशकों से ये एग्जाम कंडक्ट करती आ रही है। गिवन डेट पर एग्जाम होते हैं, गिवन रेंज में रिजल्ट अनाउंस होता है, और उसके कुछ ही महीनों के अंदर में आपको ट्रेनिंग के लिए मसूरी बुलाया जाता है। मसूरी में सारे सर्विसेज की पहले स्टार्ट की फाउंडेशन ट्रेनिंग एक साथ में होती है। मैं इसलिए इसको एम्फसाइज कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि किसी साल रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई तो एग्जाम होगी या नहीं होगी, लोग वेट कर रहे हैं, ऐसा यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बिल्कुल नहीं होता। हर साल नियमित तौर के ऊपर में अनाउंसमेंट्स और एग्जाम्स रेगुलरली होते रहते हैं, सो दैट हेल्प्स यू टू प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं बेसिक कुछ रीजंस आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों आपने सिविल सर्विसेज ही परस्यू करना चाहिए एज योर करियर। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखते होंगे या ले रहे होंगे, और फिर उसके बाद में आप उसी फील्ड में, उसी शोबे में आगे और मास्टर्स या और आगे की क्वालिफिकेशन लेने के शौकीन आप होंगे। लेकिन फिर भी सिविल सर्विसेज जो अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, मेरी नजर में शायद ही कोई और करियर आपको दे सकता है। इसलिए एक बार सीरियसली आपको सिविल सर्विसेज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या खुसूसियत या क्या खास बातें हैं इस सर्विस के अंदर? सबसे पहली चीज, दिस इज अ फुल करियर, नॉट जस्ट अ जॉब। ठीक है, इट इज अ फुल करियर, नॉट जस्ट अ जॉब। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, करियर एंड नॉट जस्ट अ जॉब? देखिए, हमारी सारी जरूरतें मीट करने के लिए हर किसी को काम करना पड़ता है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक पे चेक मिले, आपकी सारी जरूरतें, आपकी फैमिली की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स मीट हो सके। आप आपकी मेहनत, आपकी सलाहियत, आपका वक्त कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपका एम्प्लॉयर आपको उसके बदले में मॉनिटरली कॉम्पेंसेट करता है। ठीक है, ये तो हर किसी की जरूरत है। ये हम कहते हैं ये है जॉब, वेर यू कंट्रीब्यूट एंड यू रिसीव अ पे चेक फॉर दैट। करियर इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। करियर एंटेल्स अ लॉट मोर देन जस्ट रिसीविंग मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन। करियर के अंदर में आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज, आपको एक्सपोजर, आपको अलग अलग फील्ड में काम करने के मौके, समाज के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के मौके, सोशल रिस्पेक्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें मिला करके एक करियर बनता है। सिविल सर्विसेज, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली आपको कहा था, सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट
करियर इन इंडिया, क्योंकि अगर आप सम टोटल अगर आप देखते हैं तो सारी ही चीजों का एक बहुत अच्छा बैलेंस आपको सिविल सर्विसेज में मिलता है। प्राइवेट सेक्टर में यकीनन बहुत अच्छे आपको सैलरीज मिल सकती हैं और कुछ पर्क्स मिल सकते हैं, लेकिन वतन के लिए कंट्रीब्यूट करना, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना, समाज में रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें जो सिविल सर्विसेज दे सकती है वो मेरी नजर में शायद प्राइवेट सेक्टर की जॉब से आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए करियर एंड नॉट जस्ट अ जॉब इज माय फर्स्ट रीजन। सेकंड, पब्लिक इंटरफेस। व्हाट डू आई मीन बाय पब्लिक इंटरफेस? पब्लिक इंटरफेस के माने आप जो डिसीजंस लेते हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट मुआशरे पर पड़ता है। आपकी एक सिग्नेचर से कई लोगों की जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी फैसला करने की या मामला फहमी जिसको हम कहते हैं, ये सलाहियत, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है ग्राउंड पे लाखों लोगों के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक इंटरफेस यानी कटिंग एज पर आप काम करते हैं, आपके फैसले डायरेक्टली कॉमन पीपल को अफेक्ट करते हैं। आपने राजस्थान के अंदर में भिलवाड़ा मॉडल सुना होगा, ठीक है, कोविड के दौरान में भिलवाड़ा मॉडल फेमस हुआ था। या मुंबई के जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, ठीक है, चहल सर, तो उन्होंने जिस तरीके से मुंबई में कोविड का मैनेजमेंट किया है, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। तो यहां पर इस सर्विस में रह करके जो आप काम करते हैं, इसका डायरेक्ट बेनिफिट समाज को पहुंचता है। इसलिए ये पब्लिक इंटरफेस, ये सर्विसेज आपको जो देती है, ये अनमैच्ड है। दैट्स माय सेकंड रीजन। थर्ड इज द एक्सपोजर। ठीक है, हर रोज उठ करके आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस ये सर्विसेज रखती हैं। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिल सकती है। एक आईएएस ऑफिसर जो आज कलेक्टर है, कल मे बी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में वो एज अंडर सेक्रेटरी अपॉइंट होगा, या हो सकता है किसी फॉरेन एजेंसी के अंदर में उसको डेप्यूटेशन पर भेजा जाए, या उसको डायरेक्टर बना दिया जा सकता है किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। हर 2 या 3 साल में आपको बहुत डिफरेंट किस्म के जॉब्स के अंदर में काम करने का आपको मौका मिले। बाय जॉब आई मीन टू से वहां की स्पेसिफिक आपकी एक्सपेक्टेशन। इतना क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस आपको शायद ही कोई और प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी दे सकती है जैसा एक्सपोजर आपको सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्टली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये एक साइकोलॉजी की कंसेप्ट है दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपके सामने रख रहा हूं। हर किसी को खुदा ने बहुत टैलेंट्स के साथ में, बहुत सारे पोटेंशियल के साथ में नवाजा है। ठीक है, वो नफख्तु फीही मिन रूही, कुरान के अंदर में आयत है कि जब हम फूंक दें उसके अंदर उस मिट्टी के गारे में अपने रूह से, तो फिर सजदा रेज हो जाना, ये फरिश्तों से कहा। तो हम अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने मलाइक को मस्जूद बनाया इंसान के लिए, बराबर है ना? क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर में कुछ खास क्रिएटिव पोटेंशियल रखा हुआ है, एक अलग मकाम है हजरत इंसान का। तो हमारे अंदर वो जो कैपेबिलिटीज हैं उसका फुल फ्लरिश करना, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सिविल सर्विसेज जिस किस्म की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आपको प्रोवाइड करता है, वो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाता है, आपके अंदर के उस हिडन पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए आपको मौके फराहम करता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सिविल सर्विसेज इस करियर के बारे में आपने जरूर सोचना चाहिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकलिटीज कुछ क्विकली देख लेते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन नेट पर भी अवेलेबल है, इसलिए मैं बहुत क्विकली इसमें से जिप थ्रू हो जाता हूं। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। लॉजिकली ऑफ कोर्स यू हैव टू बी एन इंडियन नेशनल। उसके बाद में एजुकेशनली यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सो बाय इन्फेरेंस यहां पर में डिस्टेंस से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, या यशवंतराव चौहान हमारे यहाँ की ओपन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की, या और किसी ऐसे दीगर डिस्टेंस लर्निंग से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी इस एग्जाम के अंदर में आप अपीयर हो सकते हैं। अप टू द एज ऑफ 32 फॉर ओपन कैटेगरी आप यूपीएससी की एग्जाम को दे सकते हैं, और एमपीएससी के लिए अप टू द एज ऑफ 38 आप एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए अप टू 3 years, SC ST के लिए 5 years। Number of attempts at the exams are limited for open at 6, for OBC at 9, and SC ST can appear till their age is barred। ठीक है, एमपीएससी में अटेम्प्ट्स की एज सच कोई लिमिट या मर्यादा नहीं है। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया, टेक्निकल इंफॉर्मेशन यहां पर मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में हमने देखी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। Just a second. Okay.
नाउ लेट अस सी द स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। ये एग्जाम 3 स्टेजेस या 3 मराहिल से होकर के गुजरता है। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेन एग्जामिनेशन और तीसरा है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू को यूपीएससी के पार्लेंस में पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। सो 3 स्टेजेस से होकर के ये सिलेक्शन प्रोसेस गुजरती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। ठीक है, यूपीएससी ने कॉन्शियसली एक फिल्टरिंग प्रोसेस लगाई है ताकि हर स्टेज पर में लेस जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको फिल्टर आउट किया जा सके और अगले स्टेज के ऊपर में आप जाएं। अब इन 3 मुख्तलिफ स्टेजों के बारे में थोड़ा सा और तफसील से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आप सबने स्कॉलरशिप की एग्जाम्स दी होगी या देखा होगा स्कॉलरशिप के एग्जाम्स को, तो उसी तरीके से यहां पर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ये एग्जाम होती है, एमसीक्यू बेस्ड। यानी एक सवाल पूछा गया है आपसे और 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं जिसमें से एक ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट करना है। दिस इज एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी एक सवाल का जवाब अगर आपने गलत दे दिया तो 1/3 मार्क्स उस सवाल के डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स में से। सो फॉर एवरी 3 रॉन्ग आंसर्स आप ये कह सकते हैं कि एक सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके माइनस हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पर 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड 2। जीएस पेपर 1 ये ब्रॉड सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, सोसाइटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये 7 ब्रॉड कंपोनेंट्स इस फर्स्ट आप ये कह सकते हैं पेपर के अंदर में कंप्राइज होते हैं, 7। सेकेंड पेपर इज कॉल्ड एज पॉपुलरली CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ CSAT इज लाइक योर स्कॉलरशिप एग्जाम्स। इसमें बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक न्यूमरेसी और इसके साथ साथ में रीजनिंग एबिलिटी इनको टेस्ट किया जाता है। जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स में आपको सवाल पूछे जाते थे, ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ ये सिंपल एनालॉजी बता रहा हूं, उस किस्म के क्वेश्चंस आपको CSAT के पेपर के अंदर में पूछे जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली CSAT का पेपर ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी यहां पर में आपने बस पासिंग मार्क्स को स्कोर करना है। पासिंग मार्क्स इज 66 आउट ऑफ 200। आपने 66 स्कोर कर लिया तो आपका ये पेपर का टास्क डन है। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वेदर यू स्कोर आउट ऑफ 200 और यू स्कोर 66, आप बस पास हो गए तो आपका इस पेपर का काम खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली अगर पास नहीं हो जाते हैं तो उस केस में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन द पेपर 1 आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम इसको कहते हैं क्वालिफाइंग पेपर। प्रीलिम्स क्लियर कर जाने के बाद में you are called for the second stage of the examination which is the main examination। एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दी तो उसके बाद में प्रीलिम्स वाला मामला पूरा खत्म हो जाता है, यानी उसमें स्कोर किए हुए मार्क्स वगैरह ये मैटर नहीं करते हैं। अब आप अफ्रेश 0 से आप स्टार्ट करते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। मेन एग्जामिनेशन का नेचर प्रीलिम से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। मेन एग्जामिनेशन के अंदर में द नेचर ऑफ द एग्जाम इज डिस्क्रिप्टिव, यानी जैसे आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स लिखते हैं, सवाल और उसके ऐसे टाइप आंसर्स, तो उसी तरीके से आपको मेन एग्जामिनेशन के अंदर आंसर्स लिखने होते हैं। इस मेन एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, GS 1, 2, 3, 4 ये कहलाते हैं। GS 1 में ब्रॉडली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये 3 कंपोनेंट्स GS पेपर 1 में आते हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। GS पेपर 2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स आप GS 2 के लिए पढ़ते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और कुछ और दीगर छोटे सब्जेक्ट्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आप जनरल स्टडीज पेपर 3 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इनकी बात हुई। ईच पेपर इज वर्थ 250 मार्क्स। जनरल स्टडीज पेपर 4 ये एक यूपीएससी का नया इनोवेशन है। 2013 से, साल 2013 से ये नया पैटर्न यूपीएससी ने इंप्लीमेंट किया है, जिसमें जनरल स्टडीज पेपर 4 एक नए इनोवेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ है। इस पेपर में बेसिकली एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, यानी आपकी बेसिक कदरें, वैल्यूज, उर्दू में जिसको हम कदरें कहते हैं,
आपकी वैल्यूज कैसी हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं। दोस्तों, जिन पोस्ट पे आपको अपॉइंट करना है, ये पोस्ट बहुत बड़ी है, इन पर बहुत ज्यादा पावर्स और जिम्मेदारियां आपके ऊपर में डाली जाएगी। क्या आप इसके अहल भी है या नहीं, क्या आपके अंदर वो शख्सियत है या नहीं, एक तरीके से उसको टेस्ट करने के लिए यूपीएससी ने ये जीएस पेपर 4 इंट्रोड्यूस किया है। इस पेपर में बेसिकली थ्योरी बहुत कम है, इट इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपको केस स्टडीज के जरिए से, यानी कि एक सिचुएशन दी होती है और उस सिचुएशन के अंदर में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसको टेस्ट किया जाता है और उसके जरिए से आपको मार्क किया जाता है। एग्जामिनर वांट्स टू सी वेदर यू रियली हैव द क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर और नो, whether you have the moral integrity, the rectitude that is required for these posts. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ा मजेदार पेपर है, क्योंकि थियरी कम है, जो भी है वो आपकी शख्सियत है। कम तैयारी में भी अच्छे से आप इसको इस पेपर के अंदर स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके बेसिक एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड अच्छे हो। तो ये है जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 और 4, और ये सभी पेपर्स आपके लिए 250 मार्क्स ईच के लिए पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी में आपको एक ऐसे का भी पेपर लिखना होता है। यूपीएससी में आपको 2 एसेज लिखने होते हैं 3 घंटे में। एक ऐसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप आपको टॉपिक दिया जाता है जनरली, और एक में कोई करंट बेस्ड टॉपिक, और 3 घंटे में ये 2 एसेज आपने लिखना होता है। अब यहां शायद आपके जहन में सवाल आएगा कि सर 10th और 12th में तक तो हमने कभी कभार इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह पेपर्स में ऐसे लिखे हैं, अब इस स्टेज पे आने के बाद फिर से ऐसे क्यों लिखा जा रहा है? ठीक है, तो ऐसे इंक्लूड करने के पीछे एक बड़ी अहम वजह है दोस्तों। जब आप ऐसे लिखते हैं, और यूपीएससी का ऐसे मतलब अराउंड 1000 वर्ड्स का एक ऐसे होता है, तो जब आप एक ऐसे पूरा कंप्लीट मुकम्मल लिखते हैं तो आपकी सारी थॉट प्रोसेस वहां पर में उस ऐसे के जरिए से डिसाइफर या डिकोड की जा सकती है। आप कितना ऑर्गेनाइज सोचते हैं, आपकी लैटरल थिंकिंग कितनी अच्छी है, आपका वसी मुताला, ब्रॉड रीडिंग आपका कितना अच्छा है, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन कितना लॉजिकल है, कितना क्लियर है, ये सारी चीजों का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है आपके एसेज पढ़ के। ठीक है, इसलिए कॉन्शियसली यूपीएससी के अंदर में पिछले कई दशकों से ऐसे ये एक कंपलसरी पेपर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहां पर यूपीएससी में सिलेक्ट करना होता है। यूपीएससी ने एक लंबी लिस्ट दे रखी है 28 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उसमें से एक सिर्फ सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है और उस पेपर के लिए आपको मेंस में अपीयर होना है। मुख्तलिफ इसमें पेपर्स हैं, मैं आगे की एक स्लाइड के अंदर में उसके डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, उर्दू लिटरेचर ये भी एक पेपर अवेलेबल है, मराठी लिटरेचर ये भी पेपर अवेलेबल है, वो सिलेक्ट करके आप ये पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये 250 मार्क्स के जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स, मतलब 1000 मार्क्स, 250 मार्क्स का आपका ऐसे और 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे ही मिलाकर के 1750 मार्क्स की आपकी मेन एग्जामिनेशन बन जाती है। मेन एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का है और यहां पर मैं यूपीएससी के पैनल मेंबर्स आपको तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए आपके साथ में कुछ गुफ्तगू करते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर बड़े फेमस हो रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज, मुझे उम्मीद है उसमें से कुछ शायद आपने देखे भी होंगे और किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसका कुछ अंदाजा भी आपको आया होगा। इस स्टेज के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स या गलतफहमियां हमारे यहां पर में है, इसलिए बड़े वाज़ेह तौर पर मैं ये कह दूं यहां पर कि यूपीएससी का इंटरव्यू ये बस एक फॉर्मल किस्म का डिस्कशन होता है बिटवीन द पैनल एंड द इंटरव्यू। नॉलेज आपका ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है प्रीलिम्स और मेंस के अंदर में। अब इंटरव्यू में आने के बाद में 30-35 साल काम जिन लोगों ने किया है, ऐसे ऑफिसर्स, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, इस गुफ्तगू के जरिए से, इस इंटरैक्शन के जरिए से आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि क्या आप में सही में वो अहलियत है, वो काबिलियत है कि आप इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर काम कर सकते हैं। अगेन यहां पर मैं एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने 10th-12th के अंदर में कितने अच्छे नंबर स्कोर किए थे या नहीं किए थे। आपकी अहलियत के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऑलरेडी एलिजिबल है इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। व्हाट दे आर टेस्टिंग इज योर ट्रेड्स। ठीक है, आपकी शख्सियत के अंदर में जो ट्रेड्स हैं वो यहां पर में चेक किए जा रहे हैं। सो 275 मार्क्स का इंटरव्यू प्लस 1750 मार्क्स का मीन्स, दोनों को मिलाकर के एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और उसके बेसिस के ऊपर में कैंडिडेट्स को सर्विसेज एलोकेट की जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारा एग्जाम का प्रोसेस आगे चलता है।
यहां पर ब्रॉडली जो सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, इस स्लाइड के अंदर में मैंने जस्ट उसका एक ओवरव्यू आपको दिया है। हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ साथ में एनवायरमेंट, सोशल साइंसेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी और करंट अफेयर्स। तो ब्रॉड तौर पे हमारा जो सिलेबस है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में मुश्तमिल है। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी हम सिविल सर्विसेज की एग्जाम में करते हैं। शायद यहां पे आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन मैं इसके कॉन्ट्ररी आपसे कहूंगा दोस्तों कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमने स्कूल में उतनी तवज्जो से पढ़े नहीं थे या अक्सर पढ़ाई नहीं गए थे, उनको अच्छी तरीके से पढ़ने का मौका सिविल सर्विसेज की एग्जाम हमको प्रोवाइड करती है। इस एग्जाम के जरिए से बहुत अच्छे से हम ये बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। स्कूल के अंदर में जितना आपका हाफिजा अच्छा होगा, जितनी आपकी मेमोरी अच्छी होगी, उतने अच्छे आपके नंबर आते थे। यूपीएससी में वैसा नहीं है। यूपीएससी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपने कंसेप्ट समझी है तो ही यहां पर मैं आपके आंसर्स आपको मार्क्स फेच कर सकते हैं, और इसकी वजह से ये सारी तैयारी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम इस एग्जाम के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जाम दूसरे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किस तरीके से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। ठीक है, व्हाई इज इट दैट दिस एग्जाम इज कंसिडर्ड द चैलेंज दैट इट इज। सबसे पहली चीज, एज यंग एस्पिरेंट्स आपको ये चीज नोट करना है कि ये आपके स्कूल और कॉलेज के एग्जाम से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर में यू हैव टू गेट इनटू द मैजिकल फिगर। वो मैजिकल फिगर क्या है? इस साल मिसाल के तौर पे अगर 1000 पोस्ट की एड निकली है, 1000 पोस्ट की, तो आपको टॉप 1000 में आना ही है। अगर आप 1001 भी आते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको इस पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यानी 1001 जिस कैंडिडेट का रैंक है वो अगली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी प्रोसेस करके आएगा, तब जाकर के उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में कोई पोस्ट मिल सकेगी। ठीक है, सो गेटिंग इनटू द मैजिकल फिगर इज व्हाट मैटर्स। अनलाइक इन योर स्कूल और कॉलेज जहां पर आपने 60% प्लस स्कोर कर दिया तो आपको फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट मिल जाता है, 70 या 75% प्लस स्कोर कर दिया तो डिस्टिंक्शन मिल जाता है। यहां वैसे नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो गेटिंग इनटू द मैजिकल फिगर मैटर्स। ठीक है, इसके बाद में सेकंड फीचर इज द डायनामिक नेचर ऑफ दिस एग्जाम। अनलाइक योर स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स, यहां पर में कोई सेट पैटर्न नहीं होता। ठीक है, यूपीएससी कॉन्शियसली मोल्ड को ब्रेक करते रहती है ना, ताकि आप जो है वो कंफर्टेबल ना हो जाए कि बस इस तरीके से तैयारी कर ली तो ऐसे सवाल आ जाते हैं और हम उसके जवाब दे करके निकल जाएंगे आसानी से। ठीक है, यूपीएससी चाहती है रियल थिंकर्स और उनको ढूंढ कर निकालना। ठीक है, ये यूपीएससी का काम है, इसलिए कॉन्शियसली सवालों को ऐसे फ्रेम किया जाता है ताकि वो रियल थिंकर्स, पीपल हु कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, उनको चुन करके बाहर निकाला जा सके। इसलिए एग्जाम का नेचर डायनामिक है। सवाल जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसमें से वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारा उसमें से बाहर आना ही आना है। ठीक है, और ये हमारे लिए अच्छी चीज है। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए अच्छी चीज है कि एग्जाम ये डायनामिक नेचर रखती है। इसके बाद अगला फैक्टर है मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अनलाइक योर स्कूल और कॉलेज जहां पर आप लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और वो भी उसका जो प्लॉट था वो बड़ा लिमिटेड था, यहां पर यूपीएससी में हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड पर हमने देखा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ताकि आपके सभी सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन क्लियर हो। देखिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जब आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी जिले के आप कलेक्टर हैं और वहां पर में अगर कोई वायलेंस वाली सिचुएशन बन जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज हो जाता है, तो वहां पर में हिस्ट्री का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वहां की सोसाइटी का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको लॉ और गवर्नेंस का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ऐसे मल्टीपल डायमेंशन से सोच करके आपको आपका डिसीजन लेना है। इसलिए यूपीएससी के एग्जाम में ही ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर आपको मिलता है, सो दैट यू आर अ बिफिटिंग कैंडिडेट टू बी ऑन दोस पोस्ट्स। सो मल्टीपल सब्जेक्ट्स ये यूपीएससी एग्जाम को दूसरे एग्जाम से डिफरेंट बनाता है। आफ्टर दिस, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द ब्रॉड सिलेबस। Unlike our again college university exams, the syllabus of UPSC is of I would say relatively more depth.
ठीक है, जो डेप्थ आपकी कॉलेज लेवल की एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड होती है उससे ज्यादा डेप्थ यहां पर में एक्सपेक्टेड आपसे होती है। क्लैरिटी, द स्प्रेड ऑफ द सिलेबस, ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर में चैलेंज क्रिएट करती है, एट द सेम टाइम इस एग्जाम को बड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, इस एग्जाम में कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर प्रीमियम है। जो भी सिलेबस और टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनके कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल मैं देता हूं आपको, अगर आपने कॉलेज डेज में केमिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर में आप चार्ल्स लॉ या बॉयल्स लॉ आप पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम आप देते हैं, उसके बाद में अगली क्लास में आप जाते हैं और आपको चार्ल्स साहब, बॉयल साहब ने क्या कहा था इसका कुछ भी याद नहीं रहता। ठीक है, यूपीएससी एंश्योर्स कि वाकई जिनकी कंसेप्ट क्लियर है वही इस एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, सिर्फ जिन्होंने, सो टू स्पीक, आई एम यूजिंग अ कोलोकियल वर्ड, सिर्फ जिन्होंने रट्टा मारा है डेफिनेशंस का वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। वाकई आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं, और कंसेप्ट्स कब क्लियर होंगे, जब आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपको इस एग्जाम में नंबर मिल सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अनदर डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस एग्जाम। नेक्स्ट इज प्रिसाइसनेस। व्हाट डू आई मीन बाय प्रिसाइसनेस? प्रिसाइसनेस का मतलब है, जिसको हम मराठी में कहते हैं नेमकेपणा। ठीक है, एग्जैक्ट, जो एक्सपेक्टेड है वही चीज आपको आंसर्स में लिखना है। आपने बड़ा लंबा सा आंसर लिख दिया 5 पेज का, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर में जो पूछा गया है उसका रेलेवेंस नहीं है तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने आधे पेज का आंसर लिखा है लेकिन जो पूछा गया है उससे वो रेलेवेंट है तो आपको नंबर वहां पर में मिलेंगे। देयर इज प्रीमियम ऑन प्रिसाइसनेस। जो पूछा जा रहा है सवाल उसके बारे में आप लिखिए। जनरली ये होता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जितने नंबर होंगे उतने पेजेस ये कैलकुलेशन होता है, और आप जो है वो वही चीज को बार बार रिपीट करके या अलग अलग एंगल से या आजू बाजू की जो एतराफ की इंफॉर्मेशन है वो आप ऐड करते जाते हैं, और हो सकता है नंबर मिल भी जाए। लेकिन यूपीएससी में दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड यू नीड टू स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ दैट ओनली। उसके अंदर में रहते हुए ही आपको आपके आंसर्स को लिखना है। एंड लास्टली, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऑल सेड एंड डन, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मुकाबला जाती इम्तिहान है, इसलिए दूसरों के बनिस्बत आपको पेपर्स वक्त में कंप्लीट करना है। इसलिए आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, ये दोनों भी चीजें इस एग्जाम के अंदर में बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ नुक्ते, कुछ पॉइंट्स रखे जो इस एग्जाम को मुख्तलिफ बनाते हैं दूसरे और एग्जाम से, दूसरे और चाहे यूनिवर्सिटी की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एक स्टेप वाइज फ्रेमवर्क, एक स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, कि किस तरीके से आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत आपकी होनी चाहिए इस एग्जाम के सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से। यूपीएससी ने एट द कोर हमको सिर्फ 2 ही चीजें दी हैं, इस एग्जाम का सिलेबस और इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। अनलाइक पॉपुलर बिलीफ, इस एग्जाम में बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है। बहुत सारे लोग इस चीज को जानते नहीं है। ठीक है, बट आपको एज सीरियस एस्पिरेंट इस चीज को पहले ही समझना है कि यूपीएससी ने सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ये 2 चीजें हमको दे रखी है और इसी से हमारी तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए। सिलेबस आपको बताता है कि यूपीएससी क्या पूछ सकती है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स बताते हैं कि उसको कैसे पूछ सकती है। So that is the what and why of this exam. What UPSC can ask, syllabus बताएगा, and sorry, what and how it can ask, that the previous year's questions will tell you. What and how आपको यहां से मिलेगा। तो आपकी तैयारी की शुरुआत इन दोनों सेगमेंट से होनी चाहिए। एक बार आपकी सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पे पकड़ बन जाए तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, विच इज बेसिक रीडिंग। बेसिक रीडिंग करते हुए आपकी शुरुआत एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स, एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज, मैथ्स एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स छोड़ करके बाकी सभी टेक्स्ट बुक्स आप इसकी तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही मुफीद है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको बेनिफिट करते हैं। एक छोटी सी मिसाल यहां दे रहा हूं ताकि आपको उसकी ग्रेविटी जो है वो समझ में आए। 2 साल पहले, 3 साल पहले 2018 में यूपीएससी ने सवाल पूछा था। द क्वेश्चन वाज, विच अमंग द फॉलोइंग, मैं एक मिसाल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं,
Which among the following are the modifications seen in leaves of trees in desert areas? ठीक है, which among the following are modifications seen in trees of desert areas? फिर नीचे उन्होंने modifications बताई थी कि लीव्स छोटे हो जाते हैं, लीव वैक्सी हो जाते हैं, या लीव्स का कांटों में, थॉर्न्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आसान सा सवाल है, लेकिन डायरेक्टली ये सवाल जैसा का तैसा आपको क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मिलता है। इसका जवाब डायरेक्टली वहां पर में अवेलेबल है। सो व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर इज दैट एनसीईआरटीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। नंबर 1 फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड नंबर 2 ऑल्सो फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली। यूपीएससी वहां से सवाल पूछती है आपको। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया सिलेबस, पीवाईक्यूज और उसके बाद में बेसिक रीडिंग। एनसीईआरटीज के बाद में हर सब्जेक्ट के कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं जो कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी में यूज करते हैं। मैं वो कुछ बुक्स आपको रेकमेंड करूंगा आगे की स्लाइड में। अब मैं आपको बता रहा हूं एक बर्गर मॉडल जो आपकी प्रिपरेशन में आप यूज करेंगे। बर्गर जैसे आप जानते हैं कि 3 लेयर्स से बना होता है। बेस लेयर इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर, मतलब जो भी सिलेबस का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी बुनियादी कंसेप्ट्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट लेवल। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद में अगला लेवल आता है टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। इसे एक सिंपल मिसाल देता हूं। आप ज्योग्राफी में साइक्लोन की कंसेप्ट आप पढ़ेंगे सिलेबस में। ठीक है, साइक्लोन किस तरीके से बनता है, कैसे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ हवाएं जो है वो मूव करने लगती हैं, और जब वो समंदर के ऊपर में, ओशंस के ऊपर मूव करती है तो साथ में वो मॉइस्चर पिकअप करती रहती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं एक पॉइंट पे आने के बाद में कोरियोलिस फोर्स की वजह से गोल घूमने लग जाती हैं टुवर्ड्स राइट। तो ये सारी उसकी बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मिलती हैं। कंसेप्ट को आपने समझना है। कंसेप्ट के बाद में टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ना अब एक बार कंसेप्ट समझ में आया कि साइक्लोन कैसे बनता है, उसके बाद में साइक्लोन के फीचर्स। ठीक है, साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं कंपेयर टू अरेबियन सी, ऐसा क्यों है, ये उसकी सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। ये उसके अगला स्टेज है। पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद में उसका टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेस बिल्ड कीजिए, और फिर इसके बाद में एंड में आता है करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इट। जैसे आप रिसेंटली तौकताई, ये साइक्लोन आया हुआ है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट हुआ। ठीक है, तो तौकताई क्यों आया, कैसे आया, क्या उसका इंपैक्ट हुआ, कैसे हम ऐसे साइक्लोन्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपका करंट डायमेंशन हुआ। तो पहले कंसेप्ट, उसके बाद में टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद में करंट अफेयर्स। इन 3 लेवल्स के अंदर में आप यूपीएससी के किसी भी टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया एट 3 लेवल्स, तो उसके बाद में फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस कंसेप्ट को लेकर के कोई भी सवाल आप उठाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से उठाइए, या अभी इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल अवेलेबल हैं, और उसको सॉल्व कीजिए। चाहे वो एमसीक्यू हो या डिस्क्रिप्टिव आंसर हो, उसकी आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो कंसेप्ट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, दैट बिल्ड्स द बर्गर ऑफ योर टॉपिक। वंस दैट इज रेडी, देन यू कैन गो टू आंसर राइटिंग। इस तरीके से जब पूरा सिलेबस आपका प्रिपेयर हो जाता है, तो उसके बाद में आप एग्जाम सिम्युलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके से आप पूरा फुल पेपर 3 घंटे के पीरियड में वक्त लगा करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कॉल एग्जाम सिम्युलेटेड प्रैक्टिस। सो दीज आर द स्टेजेस थ्रू व्हिच योर प्रिपरेशन गाइस कैन मूव अहेड। ठीक है, आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स आल्सो, सो आई विल जस्ट सजेस्ट दैट आई विल फिनिश द टॉक फ्रॉम माय साइड, और उसके बाद में हम आपके क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेटर के जरिए से आप जरूर लेंगे। ठीक है, नाउ 7 स्टेप स्टडी टेक्निक, इसको मैं थोड़ा सा क्रिस्पली एक्सप्लेन करता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हुए आपका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई यूज एंड रेकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एग्जाम। आप आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई करके भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द 7 स्टेप स्टडी टेक्निक? 7 स्टेप स्टडी टेक्निक के अंदर में फर्स्ट स्टेप, जब भी कोई टेक्स्ट हम उठाते हैं तो पहली चीज हमने ये करना है कि उसके इंडेक्स को और उसके टॉपिक्स को ब्रॉडली और क्रिस्पली स्किम करना है। ठीक है, हम गलती ये कर देते हैं अक्सर कि बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पेज, फर्स्ट वर्ड से हर एक चीज को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग में। ये गलत है। हमेशा बर्ड्स आई व्यू किसी भी चीज का लेने के बाद ही
आपको डेप्थ में उतरना है। तो जो भी टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पहले उसका एक बर्ड आई व्यू ले लीजिए, उस टॉपिक को, उस बुक को स्किम कर लीजिए और समझ लीजिए कि उसके अंदर में बेसिक क्या कंसेप्ट्स एक्सप्लेन की गई हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 घंटे स्किमिंग के लिए आपको लग जाएंगे। एक बार आपका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया तो फिर आप फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वहां पर में आप डिटेल रीडिंग करते हैं। इस स्टेज पे यानी सेकंड रीडिंग्स के स्टेज के ऊपर में आप कीवर्ड्स को अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन और हाईलाइट करते हुए याद रखिएगा सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। स्केल लेकर अक्सर मैं देखता हूं बच्चे पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक ही अंडरलाइन कर देते हैं। ये काम नहीं आता दोस्तों बाद में। ठीक है, आपको रिवीजन भी करना है, इसलिए सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन और हाईलाइट कीजिए और ऐसे पूरे टेक्स्ट बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं बाय अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग। ठीक है, एक बार ये आपका सेकंड रीडिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप थर्ड रीडिंग के अंदर में उसी टेक्स्ट बुक में साइड की स्पेस में, हाशिए में या आपके सेपरेट नोटबुक में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमेशा 2 रीडिंग के बाद में होने चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में ही अक्सर बच्चे नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसमें बहुत वक्त जाया कर देते हैं बाय रिपीटिंग द सेम थिंग दैट द बुक इज सेइंग। आपको उसका क्रिस्प आपको कंटेंट निकालना है और ये फर्स्ट रीडिंग में ही नहीं हो सकता। इसके लिए मिनिमम 2 to 3 रीडिंग्स दरकार होते हैं। तो थर्ड रीडिंग के वक्त में आप साइड में नोट्स आप बना सकते हैं। एक बार आपने नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद में हर एक टॉपिक का एक माइक्रो नोट या माइंड मैप आप बना सकते हैं। माइक्रो नोट हम किसे कहते हैं? एक पेज पे पूरे टॉपिक को समराइज कर देना, दैट इज माइक्रो नोट। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं 1857 का गदर, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये सारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो आप समराइज कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को एक सिंगल पेज में, यूजिंग ओनली कीवर्ड्स, यूजिंग फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, आप उसको कर सकते हैं। ये बाद में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। याद रखिए सिलेबस जो है इस एग्जाम का ब्रॉड है और मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत होती है, इसलिए ये जरूरी है कि आपके पास में माइक्रो नोट्स हो जो फिर आपको फैसिलिटेट करेंगे क्विक रिवीजन एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक बार आपके माइक्रो नोट्स बन जाए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आता है कंटेम्पलेटिंग, जिसको हम कहते हैं तदब्बुर करना, गौर और फिक्र करना। ठीक है, तो किसी भी चीज, जो भी चीजें आपने पढ़ी है उनके ऊपर में कंटेम्पलेशन करना, उसके ऊपर में गौर और फिक्र करना, ये आपका अगला स्टेज है। ठीक है, दैट इज कंटेम्पलेटिंग। कंटेम्पलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ह्यूमन ब्रेन जितना आप उसको स्ट्रेच करेंगे बाय इमेजिनिंग, बाय रिवाइजिंग, बाय थिंकिंग, उतना ज्यादा वो कंसेप्ट्स आपके माइंड में, आपके ब्रेन में वो न्यूरॉन जो है वो फायर होकर के उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, तो जितना आप तदब्बुर करेंगे उतनी वो चीजें आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाती हैं। आफ्टर कंटेम्पलेटिंग देन कम्स आंसर राइटिंग एंड देन कम्स रिविजन। तो इन स्टेजेस के जरिए से आप किसी भी टेक्स्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क which can be applied across the preparation strategy। ठीक है, इसको आप वैसे आपके अभी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आप दे रहे होंगे, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं क्विकली आपको कुछ जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस हैं इनकी स्लाइड में आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। आई विल नॉट रीड देम आउट क्विकली, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट दैट रिमेन्स विद यू फॉर रेफरेंस। ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपके सिलेबस की फॉर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू कैन टेक 3 seconds and take a quick screenshot of this slide so that it helps you later on. Okay, so 3, 2, 1. Okay, these are the NCERT textbooks that you require for preparation of these different subjects, and here also I'll not go into the details reading them out. You can simply take a screenshot for yourself for later reference. Okay, so quick 3 seconds again for that. 3, 2, 1. So now you've got the basic reference books or material also for preparing. अब मैं थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं आपको। यूपीएससी में जैसा मैंने बताया कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको मेंस के लिए सिलेक्ट करना होता है और 28 ऑप्शंस में से एक आपको इसके लिए सिलेक्ट करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपके एग्जाम में बड़ी अहमियत रखता है। ये 500 मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं बाद में आपके सिलेक्शन, आपकी रैंक, आपकी सर्विस, आपका कार्डर, हर चीज के लिए। तो इसलिए इस सिलेक्शन को और बाद में इसकी तैयारी को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से आपको करना है। अब कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें? इसमें सभी वो ऑप्शंस अवेलेबल है जो प्रोमिनेंटली हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ह्यूमैनिटीज की अगर आप बात करें
तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जो आर्ट्स बेस्ड ग्रेजुएशन वाले हैं। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। साइंस में जितने कोर साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये सारे साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं अगर आप बीएससी आपने किया है या और कोई ग्रेजुएशन है आपका। तो लिटरेचर का अगर आप शौक रखते हैं तो हमारे आइन के जितने भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, इन सभी का लिटरेचर अवेलेबल है एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उर्दू, मराठी, हिंदी, अगर आप इनके लिटरेचर से शगफ रखते हैं, शौक रखते हैं इसका, तो आप लिटरेचर भी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में कोर जो आपकी ब्रांचेस हैं, इन इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, ये सभी अवेलेबल है, एंड ऑल्सो मेडिकल साइंस। So out of all of these 28, you have to select actually one subject, और 500 मार्क्स के लिए ऑप्शनल पेपर आपका वो होगा। ठीक है, जनरली मास्टर्स लेवल की डेप्थ यहां पर में दरकार होती है। ऑप्शनल में पूछे जाने वाले सवाल और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी हाई होती है एज कंपेयर टू जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में ग्रेजुएशन लेवल नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का मास्टर्स लेवल का नॉलेज जो है वो आपको बिल्ड करना होता है, और आसान है, 4 से 5 महीने के एफर्ट के अंदर में इस चीज को बिल्कुल किया जा सकता है। और ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग ले रखा है तो आप आर्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। आर्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर होते हैं, हर कोई जो है वो इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करता है, और 5 से 6 महीने की तैयारी जो है वो मोर देन एम्पल होती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बहरहाल ये सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए 3 स्टेप गाइडलाइन है। पहली चीज है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट में आपको वाकई इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा सा मजाक के तौर पे ये चीज कहता हूं बच्चों से कि आपके लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल का सिलेक्शन है। ठीक है, तो जितने चूजी आप लाइफ पार्टनर के बारे में हो सकते हैं, उससे ज्यादा चूजी आपको यहां पर होना है, क्योंकि यहां पर 1.5 साल कम से कम आपको इस ऑप्शनल के साथ में स्पेंड करना ही है। ठीक है, आप 1 साल पहले अगर सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 साल की तैयारी और फिर एग्जाम का मेंस तक का साइकिल, तो मिनिमम 1.5 साल तो आपने गुजारना ही है इस ऑप्शनल के साथ, और यही फिर आपको सर्विस दिलाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत केयरफुली आपके इंटरेस्ट को देखते हुए आपने ऑप्शनल्स को नैरो डाउन करना है कि मुझे इन 3-4 सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लगता है, उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। फिर उन 3-4 में से कौन सा आगे आप सिलेक्ट करेंगे, इसके लिए अगला स्टेप है गाइडेंस। उन 3-4 में से आपको किस सब्जेक्ट के लिए अच्छा गाइडेंस अवेलेबल है, ये सेकंड स्टेज है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए दोस्तों गाइडेंस मैटर करता है। हर चीज अगर आप ट्रायल एंड एरर से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम इस प्रोसेस में आपका वेस्ट हो जाएगा। सो बेहतर यह है कि आप सही गाइडेंस के अंदर में प्रिपेयर करें, और खास तौर पे ऑप्शनल के लिए। सो गाइडेंस की अवेलेबिलिटी ये सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है ऑप्शनल सिलेक्शन में। और तीसरा है स्टडी मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी स्टडी मटेरियल। इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका डिसाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक और यहां पर मैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्विकली मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, उसके बाद में वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स इस एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और इसलिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको अभी से, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर, अगर आप अभी ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा अभी से आप आदत रखिए एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने की। और अच्छा न्यूज़पेपर का मतलब यहां पर में टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे, पुणे मिरर, ये सारी चीजें नहीं है। गुड क्वालिटी न्यूज़पेपर जहां पर में आपको सीरियस जर्नलिज्म आपको मिलता है। तो यहां पर में वन गुड न्यूज़पेपर एग्जाम पर्सपेक्टिव से द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। द हिंदू आइडियल है, लेकिन इसकी जो जबान है वो वोकैबुलरी उसकी थोड़ी सी टफ है, तो अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उर्दू के अंदर में या मराठी के अंदर में अच्छे उस लेवल के मयारी न्यूज़पेपर्स नहीं है, इसलिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। हिंदी में बहरहाल दैनिक भास्कर ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जब आप सीरियस प्रिपरेशन एंटर करते हैं तो आप गवर्नमेंट की कुछ अच्छी मैगजीन्स हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र है, ये मैगजीन्स आपको पढ़नी होगी, और इन मैगजीन्स में से आपको बहुत अच्छा एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट आपको मिलता है, तो ये भी आप इसके साथ में ऐड अप करेंगे। इसके अलावा क्लासेस, हर प्रोफेशनल क्लास का मंथली बुकलेट आता है करंट अफेयर्स का, ये भी आपके लिए काफी मुफीद हो सकता है एग्जाम की तैयारी के लिए। और आखिर में टीवी पर कुछ अच्छे डिबेट शोज आप देख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी टॉपिक का, करंट टॉपिक का
अलग अलग उसको देखने का नजरिया, उसके पर्सपेक्टिव्स आपको समझ में आ सकते हैं। अच्छे डिबेट शोज देखिए, और अच्छे डिबेट शोज का मतलब है वो डिबेट शोज जहां पे वाकई में क्वालिटी डिबेट हो रहा है। ठीक है, आजकल जो शाउटिंग मैचेस चलते हैं प्राइम टाइम टीवी के ऊपर में, वो हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा राज्यसभा टीवी, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जहां पर में कुछ अच्छे पर्सपेक्टिव्स आपको डिबेट शोज के अंदर में मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों थी सम सर्टेन इनसाइट्स रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स। मेरा ख्याल है मेरा वक्त जो है वो आई एम आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी, इसलिए मैं और ज्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर मैं मॉडरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने साइड से मेरा टॉक जो है यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। बच्चों के साइड से या पेरेंट्स के साइड से अगर कोई सवाल है तो जरूर हम उनको ले सकते हैं। Thank you, sir. We'll move on to the questions. The first question is state PSC easier than UPSC? Okay, very pertinent and relevant question. Is state PSC easier vis-a-vis UPSC? तो रिलेटिवली आप ये जरूर कह सकते हैं कि यूपीएससी के बनिस्बत स्टेट पीएससी एग्जाम्स ये कंपैरेटिवली जो है वो आसान होती है। यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप पैरेलली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी तरीके से दोनों की तैयारी करते हैं। महाराष्ट्र की अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो यूपीएससी प्रिपेयर करते हुए आपका 60 to 65% ऑफ एमपीएससी ऑलरेडी प्रिपेयर हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको बस अराउंड 35 to 40% आपको एडिशनल महाराष्ट्र स्पेसिफिक इनपुट्स प्रिपेयर करना होता है और आप आसानी से वो एग्जाम भी आप दे सकते हैं। रिलेटिवली इजियर है, बट एट द सेम टाइम जो पोस्ट आपको सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के एग्जाम से मिलते हैं बनिस्बत उसके स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में से मिलने वाले पोस्ट, इनमें काफी गैप है। ठीक है, तो जैसे कि एमपीएससी से अपॉइंट होने वाला डिप्टी कलेक्टर यानी एमपीएससी से पास होने वाला जो टॉपर है, ही गेट्स डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर को आईएएस बनने में 18 साल करियर की सर्विस लग जाती है तकरीबन। ओके, सो आफ्टर 18 इयर्स यू आर गोइंग टू रीच दैट पोस्ट जो आपको यूपीएससी में फर्स्ट डे से मिलेगी। सो पोस्ट के अंदर में भी वो गैप या डिफरेंस आपको दिखता है। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Okay. The next one is, how many candidates are successful every year in comparison of English and Hindi in UPSC? Also tell by comparing the previous year. ओके, स्पेसिफिक डेटा या स्टैटिस्टिक्स तो अभी इस वक्त में मुझे याद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी कैंडिडेट्स तो जो है वो इंग्लिश के हैं। उसके बाद में क्लोज नंबर इज दैट ऑफ हिंदी। हिंदी में भी सब्सटेंशियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्लियर होते हैं और रिसेंट ईयर्स के अंदर में उनका नंबर्स और ज्यादा बढ़ा है। तो पहले क्या होता था कि हिंदी के अंदर में गाइडेंस और मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं हो पाता था, रीजनल लैंग्वेजेस का भी वही हाल था, तो इसलिए ओवरवेलमिंग हमको इंग्लिश मीडियम रख करके क्लियर होने वाले कैंडिडेट्स का नंबर्स जो है वो हमको ज्यादा दिखता था। लेकिन ओवर द इयर्स जैसे जैसे गाइडेंस जो है वो इजीली अवेलेबल होता जा रहा है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती जा रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर क्लियरिंग टेकिंग हिंदी और फॉर दैट मैटर अदर रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो, उनका प्रपोर्शन जो है वो बढ़ रहा है। बहरहाल इसमें ना जाते हुए मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा कि आप आपका कंफर्ट लेवल देखें। ठीक है, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली, लॉजिकली, कोजेंटली, कोहेरेंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब इतनी आपकी इंग्लिश है कि कोई भी 12th स्टैंडर्ड का पर्सन अगर वो पढ़ता है आपके आंसर्स और ऐसे तो बड़ी आसानी से वो उसको समझ सकता है, तो दैट इज गुड इनफ फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम में आपको कोई नॉवेल वाली इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू मस्ट ओनली बी एबल टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली। अगर वो है तो आप इंग्लिश में इस एग्जाम को लिख सकते हैं और इस एग्जाम में टॉप कर सकते हैं विद दैट लेवल ऑफ इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर उस केस में आप दूसरे मीडिया के बारे में सोच सकते हैं। एंड डेफिनेटली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज सब्सटेंशियल, वहां पर मैं ऐसा कोई रिजर्वेशन रखने की जरूरत नहीं है कि क्या हिंदी से बच्चे क्लियर हो रहे हैं या नहीं, मराठी से हो रहे हैं नहीं। देयर आर एम्पल एग्जांपल्स ऑफ दैट आल्सो। Okay, the next one is, after clearing the first exam in prelims, we go from the qualifying exam. If we do not qualify, do we have to give the first exam again? Yes, unfortunately if you're not able to clear prelims or for that matter at any stage if you are out of the process, तो फिर आपको सारी प्रोसेस रिपीट करनी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर जो है जब वो क्रिकेट अपने पीक पर थे तो उस वक्त में 90s में आकर के आउट हो जाते थे, तो इसलिए सचिन को कहा जाता था नर्वस 90s में आकर के जो है शायद वो सेंचुरी का बर्डन रहा होगा, वो उस वक्त में 90s में बहुत दफा आउट होते थे। तो अगली दफा जब सचिन बैट करने के लिए आते थे तो उस वक्त में उनका स्कोर 0 होता था, राइट, बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ क्रिकेट। सो वैसे ही यहां पर मैं भी इस
एग्जाम प्रोसेस में आप चाहे जिस स्टेज पे आउट हो जाए, जब आप वापस फ्रेशली नेक्स्ट साइकिल में एंटर करते हैं तो आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रीलिम्स आपने देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है। मेरा एक साथ में जो मैं हमारे तैयारी करते थे, तो वो कैंडिडेट ने 4 दफा इंटरव्यू दिया, लेकिन चारों दफा उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, 4 times ही कुड नॉट गेट इनटू द फाइनल लिस्ट। तो हर दफा नेक्स्ट टाइम ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स। तो दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। जैसे आप वो स्नेक्स एंड लैडर्स वाली गेम खेलते हैं, अगर आप सांप के मुंह में चले जाएं उस बोर्ड पर, तो डायरेक्टली वो आपको टेल तक नीचे तक ला करके छोड़ देता है, बिल्कुल उसी तरीके से। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एवरेज मार्क्स टू बी स्कोर्ड इन जीएस टू क्वालिफाई फॉर मेंस? What should be the average marks to score for GS to qualify for mains? Okay. See, generally the range is 98 to 100. ठीक है, ये रेंज अगर आप जीएस पेपर 1 में स्कोर करते हैं प्रीलिम्स के अंदर में, तो कट ऑफ इस रेंज में रहा है। सेफर स्कोर विल बी, अगर आप 107 108 अगर आप स्कोर कर देते हैं एंड अबाउ, तो फिर वहां से आप सेफ जोन के अंदर में आ जाते हैं। बट जनरली अराउंड 98 to 100 ये रेंज में पिछले 5-6 साल का कट ऑफ रहा है। सो कट ऑफ इज नॉट फिक्स्ड गाइस, वो हर साल के नंबर्स के ऊपर में डिपेंड करता है, लेकिन रिलेटिवली अगर हम एक अंदाज लगाएं तो ये स्कोर्स जो है वो आपको क्वालिफाई करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, which subject is best to clear civil services exam after class 10? ओके, ये बड़ा कॉमन सवाल होता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद में हम किस स्ट्रीम में जाएं, आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, ताकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में हमको उस चीज के लिए फायदा हो। तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से भी कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप जल्दी सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसको इतना भी हावी ना कीजिए कि आपका ग्रेजुएशन का डिसीजन भी आप उसके बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आप मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, या आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका ग्रेजुएशन का फील्ड डिसाइड कीजिए, यूपीएससी के हिसाब से नहीं। ओके, डोंट पुट, ऐसे जैसे इंग्लिश में कहते हैं, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आपने पहले ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, और अगर यूपीएससी गॉड फॉरबिड वर्कआउट नहीं होती है, तो उसी शोबे में आपने आपका करियर भी डेवलप करना है। सो it should not be that you chose a particular stream only for UPSC and later on then you had to develop a career in a field that you did not like to start with. इसलिए मेरा मशवरा ये होगा कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपके अंदर का जमीर कहता है कि यहाँ पर आप अच्छा करियर डेवलप कर पाएंगे, अगर यूपीएससी डज नॉट वर्क आउट, आप उस फील्ड को चुने और उसके साथ में आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। हर ग्रेजुएशन की फील्ड से यहाँ पर में कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो एज सच कोई स्पेसिफिक एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये किसी फील्ड के अंदर में नहीं है। सवाल जो है लेकिन बहुत अच्छा और रेलेवेंट था आपका। नेक्स्ट, I am preparing for 2 years. All my syllabus is covered, but I am still lagging marks in prelims mock paper with 80 out of 200. Okay. How to improve those marks? Yes, ये इसको मैं कहता हूँ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि प्रीलिम्स की तैयारी आपने कर रखी है, लेकिन आपका जो स्कोर है वो 85 to 95 के बीच नहीं आ रहा है। आप अगर 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर में, तो ये इस बात को बताता है कि आपने मेहनत जो है वो अच्छी कर रखी है। अब जो लैकिंग है आपके पास में वो है आपका एग्जाम स्किल। ठीक है, एग्जाम स्किल अगर नहीं होगा तो आप वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से निकल के कॉरिडोर ऑफ सिक्योरिटी में नहीं जा पाएंगे। मतलब 105 के ऊपर जो स्कोर है हम उसको कहेंगे कॉरिडोर ऑफ सिक्योरिटी। अब वहां तक जाने के लिए आपको नॉलेज से ज्यादा एग्जाम स्किल की जरूरत है। अब इस एग्जाम में प्रीलिम्स के स्टेज में हार्डली, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है लेकिन चूंकि सवाल स्पेसिफिक पूछा गया है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाकर के इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। प्रीलिम्स के स्टेज के ऊपर में हार्डली 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में कैंडिडेट श्योर हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन स्कोर तो आपने करना है 100 प्लस एटलीस्ट, तो उस केस में आपको आपका अटेम्प्ट बढ़ाना होता है और वहां पर में फिर आपका एग्जाम स्किल काम आता है। फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, उसमें सिली मिस्टेक्स जिनको हम कहते हैं उनको कैसे आप अवॉइड करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स आप कैसे करते हैं। ठीक है, यूपीएससी की सवाल फ्रेम करने की एक पर्टिकुलर स्टाइल है, उसको आपने डिकोड किया है नहीं, ये सारी चीजें मैटर करेगी आपका वो स्कोर 15 मार्क्स से 20 मार्क्स से और बढ़ाने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आपने मेहनत अच्छी कर रखी है, अब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर में काम कीजिए एनालिटिकली, कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आप वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, कैसे आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यही सारी चीजें हैं जो आपको वो 105 प्लस की रेंज में लेकर जा सकती हैं। सो नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ इट, सेकेंड हाफ इज योर एग्जाम स्किल, दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। ओके, नेक्स्ट, ऑप्शनल में कॉमर्स के कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ओके, कॉमर्स रिलेटेड 2 सब्जेक्ट्स हैं,
कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये एक सब्जेक्ट है, और इसके अलावा बाय एक्सटेंशन अगर आप कहें तो मैनेजमेंट ये भी एक सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कॉमर्स के साथ में उसमें कुछ रिलेटेड सिलेबस का ओवरलैप है, तो वो एक सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है। ये दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। Okay, the next is, what is the ideal age or time to get ready to prepare for UPSC? Okay, that's also a very good question. In my view, first year of your college, यहां से अगर आप आपकी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो मैं समझता हूं यू आर एक्सीलेंटली प्लेस्ड टू क्रैक दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज। मान लो कि आपने नहीं भी किया है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दैट इज गुड फॉर अस, आइडियली फर्स्ट ईयर से। बहुत सारे कैंडिडेट्स थोड़ा और भी उससे पहले आजकल मैं देख रहा हूँ शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जो है, एक तो प्रोग्राम में हमारे यहाँ पर मैं एक पेरेंट उनके 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को लेकर आए थे और कहा था कि सर हम यूपीएससी की तैयारी अब से कैसे करें। तो मैं कहूंगा कि इतनी भी आपको जो है वो जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेट द किड ग्रो और उनको अपना बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी वगैरह पर फोकस करने दीजिए। एक बार आप कॉलेज में चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। Okay. Next one is, how many attempts is allowed for students in UPSC? हाँ, जैसे मैंने बताया था 6 अटेम्प्ट्स ओपन कैटेगरी के लिए अलाउड होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स, और ओबीसी के लिए 3 और जायद अटेम्प्ट्स यानी 9 अटेम्प्ट्स टोटल अलाउड है। Okay. What all career opportunity are available for UPSC aspirant in defense sector? ओके, डिफेंस रिलेटेड यूपीएससी के अंदर में कुछ सर्विसेज हैं जिसके अंदर में डिफेंस एस्टेट्स नाम की एक सर्विस है। तो वो सिविल सर्विसेज की जो 23 सर्विसेज मैंने आपको बताई थी, तो उसी में एक सर्विस आती है डिफेंस एस्टेट सर्विस। तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ डिफेंस एस्टेट सर्विस में बेसिकली जो कैंटोनमेंट्स होते हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम डिफेंस एस्टेट सर्विसेज करती है। तो वो एक बड़ी अच्छी सर्विस है। इसके अलावा डिफेंस अकाउंट सर्विस है, डिफेंस सिस्टम के हमारे जो अकाउंटिंग है उसके अंदर में ये सर्विस काम करती है। इसके अलावा हेडक्वार्टर्स जो है हमारी डिफेंस सर्विस का, उसकी भी एक सर्विस इन्हीं 23 सर्विसेज में है। तो ये 3 डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज सिविल सर्विसेज का पार्ट है, इस एग्जाम का ही पार्ट है। ये अगर आप क्लियर कर जाएं तो आप इनमें से 3 सर्विसेज में से आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं इफ यू लाइक। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है। इसके अलावा यूपीएससी ही एनडीए और सीडीएस की एग्जाम कंडक्ट करती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जो 12th के बाद में 12th साइंस के बाद में आप अपीयर करते हैं एनडीए की एंट्रेंस, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस जो कि ग्रेजुएशन के बेसिस पर होता है, वो भी यूपीएससी कंडक्ट करती है, बट दैट्स अ डिफरेंट एग्जाम ऑल टुगेदर। अगर आप फुल फ्लेज्ड मतलब फाइटिंग आर्म जिसको हम कहते हैं आर्मी का, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो फिर आपको एनडीए या सीडीएस डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज एज आपको वो डिसाइड करना होगा। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं डिफेंस की, तो सिविल सर्विसेज की 3 जो मैंने सर्विसेज बताई उनमें से किसी सर्विस में आप जा सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। Okay. Next, law students are more aware and good at articulation. So, any advantage for them to prepare for UPSC? जी देखिए, हर एक फील्ड का यहाँ पर मैं कोई ना कोई सिलेबस के अंदर में रिलेवेंस आ ही जाता है। तो लॉ अगर आपने पढ़ रखा है तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वो सिलेबस का वो सारा पार्ट जो है वो आपका टेकन केयर ऑफ है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में लॉ अवेलेबल है, तो 500 मार्क्स का वो लॉ सब्जेक्ट आपके लिए एडवांटेज दे सकता है इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दैट। और इसके अलावा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आर्टिकुलेशन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है लॉ के अंदर में। देयर इज अ प्रीमियम एट इफेक्टिव आर्टिकुलेशन। तो वो स्किल अगर आपके पास में डेवलप्ड है तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर में भी डेफिनेटली होगा। तो ये 3 बेनिफिट्स आपको ब्रॉडली आपके बैकग्राउंड की वजह से मिल सकते हैं। Okay, this is the last question and then we'll wrap up. How much our optional subjects can influence our selection? Should we choose on that basis? Example, PSIR for getting IFS or public administration for IAS. Okay, there are 2 parts actually to your question. Yeah. The first part is generic. तो जेनरिक वाला जो पार्ट है उसको मैं पहले एड्रेस कर रहा हूँ कि कितना बड़ा इम्पैक्ट ये प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो जैसा मैंने मेरे टॉक में भी मैंने कहा था कि बहुत ही डिसाइसिव रोल आपके ऑप्शनल का है। वो क्यों? क्योंकि जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हैं हमारे जीएस पेपर 1 to 4, इसके अंदर लीवरेज बहुत ज्यादा मार्क्स के अंदर में नहीं मिल पाता। हार्डली 20-25 मार्क्स आप दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल जो है वो आपने जिसको हम कहते हैं ना पूरा इम्बाइब कर दिया है, एसिमुलेट कर दिया है आपने अंदर, तो उस केस में आप बहुत बड़ा लीवरेज अराउंड 100 मार्क्स 120 मार्क्स का भी आप दूसरे कैंडिडेट्स पर ले सकते हैं
with your optional subject. इसलिए ओवरऑल आपके सिलेक्शन में डेफिनेटली अ वेरी डिसाइसिव रोल is going to be played by your optional subject. That is the first half of your question. अब सेकेंड हाफ जो है आपका के PSIR अगर लेंगे तो फॉरेन सर्विस या पबाइड लेंगे तो IAS, तो ये इसमें आप ना जाए. मैंने आपको 3 क्राइटेरिया जो बताए हैं, दैट इज व्हाट इज रेलेवेंट. योर इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल. एक बार आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद जिस भी सर्विस में आप जा रहे हैं उसके बाद एग्जाम का, आपके सब्जेक्ट का, स्कोर का ऐसे कोई रेलेवेंस नहीं रहता. Once you are recommended for IAS, it does not matter whether you had studied PUBAD or Pali literature. It is completely uncorrelated. और जितना PUBAD चाहिए IAS को उतना आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में आप फिक्र मत कीजिए. So don't correlate it with actual service. हाँ, क्लियर करने के लिए एग्जाम के लिए जो आपके लिए सूटेबल लगता है ऑप्शनल, डेफिनेटली आप चूजी रह करके उसको सिलेक्ट कीजिए. Thank you. Just a short note to the participants. Sorry, we couldn't take all the questions due to time constraint. However, you can post it in the career counseling cell. Its link is given in the chat box. Thank you very much, Jawad sir. It was indeed a very insightful second. Yeah. Yeah. I'll just share my WhatsApp contact with sure. Participants, so that if you feel like, feel free to connect with me on WhatsApp, or you can drop a call. Yeah, that would be good. Yeah, my number is 7264 919482. I'm saying it again, 7264 919482. This is my WhatsApp contact, and I have a Telegram channel where I share exam relevant content. So you can follow me on Telegram also. It is Jawad Qazi Current Affairs. JAWWAD Jawad, my name. Qazi, that's my last name. You can see my spelling on the screen also. Jawad Qazi Current Affairs. So if you just search this, you'll get my Telegram channel, and you can stay connected through that also. Thank you. Thank you very much, sir. It was indeed a very insightful session. Thank you for sharing your valuable time with us. Thank you, and I hope our participants will be benefited from this session. Our next session is on 17th June at 4 p.m. The topic is Career in Law and Judiciary. That's it for now. See you next time. Take care and stay safe, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.